Today we will learn cytoplasm. What is cytoplasm? If I draw the structure of cell, then we can make it more clear. This is cell and there is a small structure between the cell or mid the cell. This is called nucleus. Around the nucleus, the outer wall of the nucleus is called nuclear envelope. What is called? Nuclear envelope. Nuclear envelope. The outer wall of the nucleus. Between the nuclear envelope and cell membrane, this internal wall is called cell membrane. Between the nuclear envelope and cell membrane, there is an area, this area called cytoplasm. What is called? Cytoplasm. The importance of this area is it provides sight to the organelles to perform their functions properly. Clear? Sight to organelles to perform their functions. Clear? Now, if I talk about the appearance, it is semi-transparent. Transparent means like mirror, like glass. The object, transparent object, is that can pass through light. Well, is semi-transparent. इसका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, जिसमें से रोशनी गुजर जाए. That allow the light to pass through it. लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है हाफ, यानी किसी हद तक, एट सम एक्सटेंट ये क्या है? शफाफ है, क्लियर है. ये सेमी ट्रांसपेरेंट भी है, सेमी विस्कस भी है. क्या चीज़ है? सेमी विस्कस. विस्कस का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड. क्या? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? गाढ़ा. सेमी विस्कस यानी किसी हद तक, एट सम एक्सटेंट इट इज़ विस्कस. विस्कोसिटी इसमें पाई जाती है. सेल मेम्ब्रेन की बात की. If I talk about the cell of plant, there is the outer wall is called cell wall. What is called? Cell wall. चलें अब बात करते हैं इसके ऑर्गेनल जो इसके अंदर पाए जाते हैं. इसके अंदर जैसे है गोल्जी बॉडीज़ पाया जाता है, और है हमारे पास और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं. जैसे ये है न्यूक्लियस है. अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूँ तो द आउटर वॉल इज़ कॉल्ड सेल वॉल. ये सिर्फ सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, जानवरों में नहीं पाई जाती. क्लियर? प्लांट्स में इसलिए पाई जाती है क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, और पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करने की वजह से वो जो सेल्स हैं वो फूल जाते हैं. ठीक है. टुडे वी विल लर्न साइटोप्लाज्म. व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? इफ़ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, then we can make it more clear. This is cell and there is a small structure between the cell or mid the cell.
This is called nucleus. Around the nucleus, the outer wall of the nucleus is called nuclear envelope. What is called? Nuclear envelope. Nuclear envelope, the outer wall of the nucleus. Between the nuclear envelope and cell membrane, this internal wall is called cell membrane. Between the nuclear envelope and cell membrane, there is an area, this area called cytoplasm. What is called? Cytoplasm. The importance of this area is it provides sight to the organelles to perform their functions properly. Clear? Sight to organelles to perform their functions. Clear? Now, if I talk about the appearance, it is semi-transparent. Transparent means like mirror, like glass. The transparent object is that can pass through light. Well, is semi transparent. इसका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, जिसमें से रोशनी गुजर जाए, that allow the light to pass through it. लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है हाफ, यानी किसी हद तक, एट सम एक्सटेंट ये क्या है? शफाफ है, क्लियर है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट भी है, सेमी विस्कस भी है। क्या चीज़ है? सेमी विस्कस। विस्कस का मतलब होता है कॉन्सनट्रेटेड। क्या? कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। सेमी विस्कस यानी किसी हद तक, एट सम एक्सटेंट इट इज़ विस्कस, विस्कोसिटी इसमें पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन की बात की। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेल ऑफ प्लांट, देयर इज़ द आउटर वॉल इज कॉल्ड सेल वॉल। व्हाट इज़ कॉल्ड? सेल वॉल। चलें अब बात करते हैं इसके ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर जैसे है गोल्जी बॉडीज़ पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज़ है, और है हमारे पास और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। जैसे ये है न्यूक्लियस है। अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूँ तो द आउटर वॉल इज़ कॉल्ड सेल वॉल। ये सिर्फ सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, जानवरों में नहीं पाई जाती। क्लियर? प्लांट्स में इसलिए पाई जाती है क्योंकि प्लांट्स जो है वो पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, और पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करने की वजह से वो जो सेल्स हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है? और सेल वॉल जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मटीरियल प्रेजेंट in the cytoplasm. Well, this material is water like material, that is liquid, and that liquid contains organic materials or organic molecules. Now we will talk about the organic molecules. Organic molecules क्या होते हैं? Organic molecules, if I talk about the organic molecules, we have best example. The organic molecule is protein,
proteins and lipids, carbohydrates, lipids, carbohydrates, और हमारे पास चीज़ें क्या होती हैं, carbohydrates. Along with these things, there is one more thing, inorganic. What is inorganic? Inorganic salts. इनऑर्गेनिक साल्ट्स कौन से हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं, जैसे हमारे पास वी हैव हियर सोडियम, पोटाशियम. दिस बिलोंग टू इनऑर्गेनिक salt. Inorganic salts. Clear? Now we will talk about the function of cytoplasm. The cytoplasm provide the site to the organelles to perform their functions very well. And also provide the site of various biochemical reaction or metabolic reactions. For example, we have here glycolysis. What is glycolysis? Glycolysis means breakdown of ग्लूकोज. अब जो ग्लाइकोलाइसिस है ये हमारे पास किसकी मिसाल है, मेटाबॉलिक रिएक्शन की. ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन. ये प्रोसेस किसके दरमियान होता है, कब होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन. किसके दरमियान होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन के दरमियान. सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है, सेल्स के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है. सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का टूटना ऑक्सीजन की मौजूदगी में और किस में कन्वर्ट होना, एटीपी में. किस में, एटीपी में कन्वर्ट होना. दिस इज़ ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म. होपफुली आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मटीरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. वेल, दिस मटीरियल इज वाटर लाइक मटीरियल, that is liquid, and that liquid contains organic materials or organic molecules. Now we will talk about the organic molecules. Organic molecules क्या होते हैं, organic molecules. If I talk about the organic molecules, we have best example. The organic molecule is proteins and lipids, carbohydrates, और हमारे पास चीज़ें क्या होती हैं, carbohydrates. Along with these things, there is one more thing, inorganic. What is inorganic salts. इनऑर्गेनिक साल्ट्स कौन से हो सकते हैं, किसके हो सकते हैं, जैसे हमारे पास वी हैव हियर सोडियम, पोटाशियम. दिस बिलोंग टू inorganic salt. Inorganic salts. Clear? Now we will talk about the function of cytoplasm. The cytoplasm provide the site to the organelles to perform their functions very well. And also provide the site of various biochemical reaction or metabolic reactions. For example, we have here glycolysis. What is
glycolysis. Glycolysis means breakdown of ग्लूकोज। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है ये हमारे पास किसकी मिसाल है? मेटाबॉलिक रिएक्शन की ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन। ये प्रोसेस किसके दरमियान होता है, कब होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन किसके दरमियान होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन के दरमियान। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है? सेल्स के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का टूटना ऑक्सीजन की मौजूदगी में और किस में कन्वर्ट होना? एटीपी में। किस में? एटीपी में कन्वर्ट होना। दिस इज़ ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।